So hello dear student, welcome back to our channel CHHC Arts and Commerce. So today we are going to discuss democracy. In this video we will cover democracy's meaning, definition, types, dimensions and basic principle of democracy. So let's start with introduction. Democracy is a form of government in which people have the power to choose their leaders and participate in decision making process. डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल अपने लीडर्स को खुद चूज करते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस and ensuring that the government work for the welfare of the people. See the meaning. So the word democracy has been derived from the two Greek words demos and kratos. So the word demos means people and the word kratos means power. In this way the term democracy means power of the people. तो डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है. डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल यानी जनता और क्राइटस जिसका मतलब होता है पावर यानी शक्ति. इसी प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति या जनता की शासन. So the democracy stand popularly defined as a form of government in which people are held to be sovereign. डेमोक्रेसी में पीपल्स को सोवरेन बोला जाता है क्योंकि उनके पास में सुप्रीम और अल्टीमेट पावर होती है. द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज कैरिड आउट बाय द पीपल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के जितने भी वर्क्स होते हैं वो पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन. Democratic government are at work in many countries of Asia, Africa, Europe and America, but in almost all countries indirect और representative democracy prevail. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ में जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका में प्रिवेल है, बट ओनली इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में प्रिवेल है. ओनली डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे स्विट्ज़रलैंड एंड सम यूनिट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में प्रिवेल है और बाकी सब मैक्सिमम कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रिवेल है. Now definition of democracy. According to Silly, democracy is government in which everyone has a share. And according to Abraham Lincoln, democracy is government of the people, by the people and for the people. According to Aristotle, democracy is freedom of every citizen. So there are three major dimensions of democracy: political dimension, social dimension and economic dimension. So first we will read political dimension. A democratic state is usually that state in which all the people as a whole with sovereign power and authority exercise the final control over public issues and determine as to be the which form of government shall be follow. A democratic state prescribes not only for the system of government but also the method of appointing, controlling and dismissing the government. लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, नियंत्रित करती है और ज़रूरत पड़ने पर बदल भी सकती है. यहाँ अंतिम शक्ति जो है वो जनता के पास ही होती है. सो नेक्स्ट इज सोशल डायमेंशन. Democracy function only in democratic society in which all human beings are treated as equal and enjoy the right to equality as well other legal rights and freedoms. No discrimination is made on the basis of caste, color, creed, religion, place of birth and sex. Equal citizenship and equal opportunity to all citizens are given. लोकतंत्र में सभी लोगों को समान मान्यता दिया जाता है. जाति, धर्म, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होता है. सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलता है. नाउ लास्ट इज इकोनॉमिक डायमेंशन. Political and social dimension should always be accompanied by economic democracy. It stands for economic equality, which means equitable distribution of wealth and resources and existence of equal opportunity for all the citizens and adequate means of livelihood for all. लोकतंत्र केवल राजनीतिक अधिकार नहीं देता है बल्कि आर्थिक समानता पर भी जोर देता है. इसका मतलब है कि सभी लोगों को रोजगार और जीवन जीने के समान अवसर मिलने चाहिए. There are two main forms of democracy. First is direct democracy and second is indirect democracy. So first direct democracy. Direct democracy is a system in which people are sovereign. Direct democracy एक ऐसा system है जिसमें people क्या है, sovereign है. They elect their representative who form the government
वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे। Along with them, the people can directly take part in the process of law making through several means like referendum, initiative, recall and plebiscite। और उसी के साथ साथ पीपल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग through several means like referendum, initiative, recall and plebiscite। When the people of the state directly participate in the law making process and other functions of the state, it is called as system of direct democracy। जब पीपल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन लॉ मेकिंग एंड अदर फंक्शंस ऑफ द स्टेट, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड एंड सम स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो स्विट्जरलैंड में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल है उसे हम क्या कहते हैं, लैंडसमाइन। इन 3 Swiss canton, the people directly formulate laws that govern them. Under this system, all the people of canton together constitute the cantonal assembly and formulate the laws. It is the purest form of democracy। 3 Swiss canton, कैंटन मतलब स्टेट, उसमें पीपल डायरेक्टली फॉर्मुलेट करते हैं लॉज जो उनको गवर्न करेगा। और इसी सिस्टम के अंदर में पीपल्स टुगेदर एक कैंटनल असेंबली फॉर्मुलेट करते हैं जिसमें वो अपने लिए लॉज खुद बनाते हैं। इसे हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। हाउएवर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली इन स्मॉल स्टेट। लेकिन फिर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसमें पॉसिबल है, ओनली स्मॉल स्टेट में पॉसिबल है, लार्ज स्टेट में नहीं। There are 4 modern devices of direct democracy. First is referendum. Literally, the term referendum means refer to. It is a device whereby public opinion can be asserted by direct references to the people। जब किसी कानून को जनता की मंजूरी के लिए सीधे लोगों के सामने रखा जाता है उसे रेफरेंडम कहा जाता है। रेफरेंडम मीन्स पावर ऑफ द पीपल टू अप्रूव और डिसअप्रूव एनी बिल विच देयर लेजिस्लेचर हैज़ ऑलरेडी पास थ्रू पॉपुलर वोट। रेफरेंडम के अंदर में पीपल के पास पावर होता है कि वो किसी भी बिल को अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं जो उनके लेजिस्लेचर ने पास किया है थ्रू पॉपुलर वोट। दे डिसाइड वेदर द बिल इज बिकम लॉ और नॉट। वही डिसाइड करेंगे कि बिल लॉ बनेगा या नहीं। रेफरेंडम 2 टाइप के होता है, कंपलसरी एंड ऑप्शनल। सेकेंड इज इनिशिएटिव। इट इज़ अ पॉजिटिव डिवाइस। इनिशिएटिव क्या है, एक पॉजिटिव डिवाइस। अंडर इट ए फिक्स पोर्शन ऑफ पीपल कैन सबमिट अ बिल आइदर फुल्ली और फॉर्मुलेटेड और अनफॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल डिमांड फॉर लॉ, देन रेफरेंडम फॉलो। जब जनता स्वयं नया कानून बनाने के लिए प्रस्ताव देती है उसे इनिशिएटिव कहा जाता है। Now is recall. Recall is the power of the people to recall such legislature who they believe are not acting according to the people opinion or who misusing their authority as a representative of the people। जब जनता किसी चुने हुए प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं होती है तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया को रिकॉल कहा जाता है। And last one is plebiscite. The term plebiscite is of French origin, means an appeal to the suffrage of the people। The Latin word plebiscitum means opinion or decision of the people। It means to know the wish of the people any particular issue or problem। किसी विशेष मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए जो मतदान किया जाता है उसे प्लेबिसिटम कहा जाता है या प्लेबिसाइट कहा जाता है। Second type of democracy is indirect or representative democracy। Indirect democracy is also known as representative democracy। Indirect democracy को और क्या बोला जाता है, representative democracy भी कहा जाता है। Is a system in which people elect representative to make laws and govern on their behalf। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग सीधे शासन नहीं करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही सरकार बनाते हैं। Citizen participate in government through elections instead of directly taking participate in decision making। Citizens जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते डिसीजन मेकिंग में, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही डिसीजन बनाते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इज डिफिकल्ट। ये ओनली सूटेबल है लार्ज कंट्रीज में। देन लास्ट इज आवर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज पॉपुलर सोवरेंटी। द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता के पास होती है। जनता ही चुनाव के माध्यम से सरकार बनाती है, ज़रूरत पड़ने पर उसे बदल भी सकती है। सेकेंड वन इज इक्वालिटी। ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़।
लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। थर्ड वन इज रूल ऑफ लॉ। लोकतंत्र में कानून सबके ऊपर होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो या नेता हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। फोर्थ वन इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लीडर्स आर चूजन थ्रू रेगुलर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस। लोकतंत्र में चुनाव बिना डर या दबाव के होने चाहिए। लोग अपनी पसंद के उम्मीदवारों को स्वतंत्र रूप से वोट दे सकें। इसी प्रकार से सही प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। फिफ्थ वन इज फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन्स एंजॉय फ्रीडम सच एज स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोकतंत्र में लोगों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाते हैं, जैसे बोलने का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। ये अधिकार लोगों की स्वतंत्रता और सम्मान को रक्षा करते हैं। Sixth one is majority rule with minority right. Decisions are based on majority opinion while protecting minority right. लोकतंत्र में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकार और भावनाओं की भी रक्षा की जाती है। एंड लास्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल फॉर इट्स एक्शन। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार को अपने कार्य और फैसलों की जानकारी जनता को देनी पड़ती है। सो दिस इज आवर ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. होप यू ऑल लाइक इट.